Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed chapter number 6. Now today we will start from the chapter number 7, that is congruencies of triangle. In this chapter, we will understand introduction and congruency of triangles. Let's start. Normally, a big industry manufactures an item in large numbers, and we say that the item is mass produced. एक मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे बल्क में प्रोड्यूस होते हैं क्या, बहुत सारे नंबर्स ऑफ आइटम. टेक फॉर एन एग्जाम्पल एन आइटम लाइक नट एंड बोल्ट. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नट और बोल्ट का. दीज आइटम इज यूज इन अ पर्टिकुलर पोजिशन. जो ये आइटम है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही यूज्ड होते हैं. स्कूटर, मोटरसाइकिल और अ कार. These item has to fit in all scooters, motorcycles or cars of that type. Hence, these particular items, that is nut and bolt, has to be mass produced such that all nuts and bolts are in same all aspects. Whenever any item is mass produced in industry by manufacturers, they are always identical in shape and size. तो उनकी जो shape और size होती है वो equal होती है, वो different नहीं होती है. Right? We can say that these items are congruent. तो हम उनको क्या कहते हैं, congruent है because ये equal है. मैथ्स में हम उनको बोलते हैं congruent है. They both are equal. We use this words congruent. So an item is congruent to another when both are identical. ये कब बोलेंगे हम congruent, जब दोनों आइटम क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे. राइट? In all respects, that is why shapes and size. The diagram in the figure 7.1 was drawn on a computer. The triangle ABC was drawn first and the other triangles were obtained by copying triangle ABC in various ways. All the triangles are exactly the same shape and size and they would fit exactly over each other. जो इनके शेप और साइज होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. राइट? डिफरेंट स्क्वायर्स हैविंग सेम डायमेंशंस, टू 1 rupee coins, copies of the same photographers, etc. are examples of figures having the same shape and size. Such figures are called congruent figures. ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट. राइट? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ बोथ आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. मतलब वो उधर कुल मिलाकर एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि दो जो शेप्स है उनकी जो साइज है वो इक्वल होनी चाहिए. आई रिपीट इट अगेन. टू फिगर्स आर सेड टू बी equal if both are identical in shape and size. Right? Now, congruency of triangle. यही होता है congruency of triangle. We know that जो two triangles है या angles है वो क्या होने चाहिए, equal होने चाहिए, जब तभी वो congruent prove होंगे. And this is the sign of congruency. ये जो होता है ये sign किसका होता है, congruency का. If they are exactly of the same shape and size, it means that a triangle is congruent to another triangle if three sides and three angles of one triangle are respectively equal to the corresponding three sides and three angles of the other triangle. हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स. देखो, AB is AB is equals to PQ, right? Then BC is equals to QR, right? Then CA is equals to CA is equals to RP. तो इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है स्टूडेंट्स, साइड, एंगल, साइड. राइट? तो ये क्या हो गया, जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया PQR से. राइट? आप देख सकते हो यही लिखा था मैंने, AB is equals to PQ, then BC is equals to QR, then CA is equals to RP. यही लिखा था.
जब अगर इनकी साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर. तो हम कह सकते हैं कि ये both the triangles are same and they have identical features, so they are congruent. इनकी जो शेप और साइज है वो भी इक्वल है, तो ये दोनों क्या है, congruent है. The order in which the names of triangle are written shows the order in which the vertices correspond. In figure 10.2, vertices ABC of triangle ABC correspond with vertices PQR respectively of PQR और AP PQCR. The symbol, ये जो symbol है वो क्या stands for matching और correspond. ये symbol होगा, हम इससे ये justify कर सकते हैं कि stand का matching है या फिर ये correspond है. It means different है. Let us consider congruent triangle ABC and PQR in 7.3. इन दोनों को congruent prove करना है. स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ना, इनका शेप और साइज इक्वल है. दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं तो हम इनकी कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं कर सकते. हेयर ए एंड पी बट ए डज नॉट मैच विथ क्यू और आर. बी एंड क्यू बट बी डज नॉट मैच विथ पी एंड आर. जो बी है वो पी आर से मैच नहीं कर रहा है. सी आर है वो मैच नहीं कर रहा है, जो सी आर है सॉरी पी आर है वो मैच नहीं कर रहा है. राइट, सो द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट देन एंड ओनली ए बी. जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, और बी सी है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के, और जो सी ए है वो किसके इक्वल है, पी आर के, आर पी के. For two triangles to be congruent, all their corresponding sides and all three corresponding angles of two triangles should necessarily to be equal. But वो दोनों equal नहीं है. तो ये बोल रहे कि जो triangle है वो sufficiently verify नहीं हो रहे. Three pairs of particular corresponding parts are congruent. Right? अब हम देखते कि four rules कौन कौन से होते हैं. First one is that is side side side, then side side, then angle side angle, right angle triangle जिसको हम कहते हैं right angle hypotenuse side. इसमें क्या होती है, थ्री साइड्स होती है. इसमें टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इसमें दो साइड होती है और वन एंगल. इसमें टू एंगल्स होते हैं और वन साइड होती है. और इसमें 90 डिग्री वाला राइट एंगल हाइपोटेनस साइड. अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे साइड साइड साइड, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. चलिए हम डिस्कस करते हैं. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू दी थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल. आप देख सकते हो, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. ये दो ट्राइंगल है, इनमें कोई भी एंगल्स नहीं है, तो ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया. हम इसको बोल सकते हैं कि जो सी ए है, सी ए इज इक्वल्स टू दी पी आर आर पी, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी. We can prove the congruency of two triangles by two methods. Right, students? Now first method देखते हैं. Draw the two triangles according to the measurement given. Trace one of them, tracing paper and place it over the other in such a way that the tracing exactly covers the other triangle. We observe that two triangle coincide only when a, ये किसका साइन है, मैचिंग का, ए पी पी क्यू सी आर एंड ए इक्वल्स टू एंगल पी and angle B is equals to angle Q and angle C is equals to angle R. Therefore, ABC and PQ are congruent. We state that ABC is congruent. ये किसका साइन है, congruent का. अब सेकेंड मेथड क्या है वो भी देख लेते हैं. ट्रू ट्राइंगल्स को ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट. AB is equals to PQ, that is 4 centimeter.
BC is equals to QR, that is 6 centimeter, and CA is equals to RP, that is 5 centimeter. We measure the three angles of the two triangle and fill up the following table. हमने क्या क्या दो ट्राइंगल्स लिए, दैट इज ABC एंड PQR. तो हमने क्या क्या, एंगल A और एंगल P, तो हमने क्या A माइनस P, देन एंगल B एंड Q, B माइनस Q, देन एंगल C माइनस एंगल R. तो हमने क्या देखा, डिफरेंस ये कि आइदर जीरो और स्मॉल, सो दे कैन बी इग्नोर्ड. हेंस वी कैन से दैट कि एंगल A जो है वो इक्वल है किसके, P के, B इक्वल है Q के और C इक्वल है R के. तो अगेन दोनों कंडीशन में क्या हुआ, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया. तो चलिए हम सिर्फ अब ज्यादा लंबा नहीं करते, हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंसीज को डिस्कस कर लेते हैं. राइट, two triangles are congruent if two sides and the including one angle of a triangle are respectively equal to two sides and the included angle of the other. The included angle means the angle should be contained by two sides of its arm. ठीक है, इसमें क्या होगा, साइड एंगल, साइड में साइड्स जो होगी और वन एंगल होगा. राइट, angle A is included angle of the sides AB and AC. Angle B is included angle of sides BA and BC. Angle C is included angle of sides CA and CB. Let us draw a ABC in which AB equals to 6 centimeter. जो AB है वो क्या है, 6 centimeter है. PQ है वो भी 6 centimeter है. Then BC and QR and RP is equals to CA, that is 4 centimeter. क्या है वो, 4 centimeter है. We draw another angle, triangle PQR in which PQ जो है वो 6 centimeter है, एंगल P जो है 50 डिग्री है एंड PR जो है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर. राइट, तो हमें क्या करना है, एक ट्रेसिंग पेपर पे ट्राइंगल ABC को ड्रॉ करके हम दूसरा ट्राइंगल को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एंड प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ PQR so that triangle ABC coincides exactly with PQR. अगर हम इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखेंगे तो वो एग्जैक्टली एक और क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा. राइट, तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब हमें कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना है. तो BC इज इक्वल्स टू QR, AB इज इक्वल्स टू, अब ये एंगल, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, जो दोनों क्या है, 50 डिग्री है. राइट, BC इज इक्वल्स टू QR एंड RP इज इक्वल्स टू CA. तो इससे क्या हो गया, ये एक प्रूव हो गया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. Right, now move to the next, that is एंगल साइड एंगल. अब हम थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे कॉन्ग्रुएंसी की, दैट इज एंगल साइड एंगल. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and included side of one triangle are respectively equal to two angles and the included side of the other triangle. इसमें क्या होगा, दो एंगल सेम होंगे दो ट्राइंगल के और एक साइड इक्वल होगी. राइट, let us draw two triangles, that is ABC and PQR, such that जो AB होगा वो किसके इक्वल होगा, PQ के इक्वल होगा. ये रहा हमारा फिगर, जो AB होगा वो किसके इक्वल होगा, PQ के. अब आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, दो एंगल्स बन रहे हैं और साइड ओनली वन. राइट, in triangle ABC on a tracing paper and place it on the top of PQR such that triangle ABC coincides exactly with triangle PQR. तो इससे क्या हो गया, जो एंगल C है, जो एंगल C है वो किसके बराबर है, एंगल R के. एंगल C is equals to एंगल R. राइट, AC is equals to PR and BC is equals to QR. Therefore, two triangles क्या हो गए, again congruent हो गए. Now move to the next,
दैट इज राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये क्या हो गई, RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। इसमें क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल के ट्राइंगल्स बनते हैं जो यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है। टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the hypotenuse and one side of one triangle are respectively equal। जो इसकी hypotenuse है, this one is base, right, this one is hypotenuse and this one is the perpendicular। now angle B is equals to angle Q, जो दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं 90 डिग्री, and AB is equals to PQ and PR is equals to AC, जो क्या है 10 सेंटीमीटर। AB is equals to PQ that is 8 सेंटीमीटर। एंगल B is equals to एंगल Q that is 90 डिग्री, राइट। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। Trace triangle ABC on the tracing paper and place it on top of PQR such that triangle ABC coincides exactly with triangle PQR। जब हम ट्रेस करेंगे तो एग्जैक्टली एक और हमारा फिगर बन जाएगा जिसमें क्या एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल BC इज इक्वल टू QR दैट इज 90 डिग्री। तो हमने अगेन क्या कर दिया, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते वक्त अगर कॉन्ग्रुएंसी का साइन यूज नहीं किया then your marks will be deducted। Now let's move to the solved examples। Let's start example number 1। In the figures given below, each pair of triangles have marking indicating equal parts। नेम द कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस। कितनी हमने 4 तरह की प्रॉपर्टी रीड की है, दैट इज साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड राइट हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब हमें ये बताना है इनमें कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है। नाउ फर्स्ट वन इज क्या हुई है, कितनी साइड्स है 1 2 3, हाउ मेनी साइड्स 3 साइड्स। तो ये किससे प्रूव हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको ये ऐसे लिखेंगे, लुक एट हेयर, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब पहले हमें ये बताना है कि क्या क्या इक्वल है। तो फर्स्ट वन इज एंगल AB इज इक्वल्स टू PQ, राइट, जो AB है वो इक्वल है किसके, PQ के। देन BC इज इक्वल्स टू QR, देन CA इज इक्वल्स टू RP। तो हमने इसे प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये प्रूव हो गया। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है, दैट इज साइड साइड साइड। कितनी साइड्स है 1 2 3, 1 2 3। तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, राइट। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट, दैट इज दी सेकेंड पार्ट। दिस वन इज दी सेकेंड पार्ट। नाउ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR जिसमें एंगल B इक्वल है किसके, एंगल Q के। जो ये एंगल B है ये इक्वल है एंगल Q के। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड BC इज इक्वल टू RQ QR। तो ये कौन सी, इसमें क्या बन रहे, दो एंगल्स बन रहे 1 एंड 2। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एंगल साइड एंगल। इसमें क्या है, दो एंगल्स है और 1 साइड है। यू कैन सी हेयर, ये एक साइड और दो एंगल। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हमने ट्रू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। Now move to the next, that is third one। Now third one, यहाँ पे ये दो ट्राइंगल है, राइट। ओके,
ये जो टू ट्राइंगल्स है ये कौन से है, RHS की कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव होंगे. AB is equals to CA and angle D is equals to angle A, because ये क्या प्रूव हो रहा है, यू कैन सी इन ट्राइंगल ABD एंड ACD, ये टू ट्राइंगल्स है, ये BAD एंड ACD इज इक्वल, दे बोथ आर इक्वल. और ADC पे 90 डिग्री बन रहा है, ADB पे भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री. नेक्स्ट BD इज इक्वल्स टू CD, जो ये लाइन है BD इज इक्वल्स टू CD. आई रिपीट इट अगेन, एंगल ADC एंड एंगल ADB क्या बना रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री बना रहे हैं ADC, एंड BD इज इक्वल्स टू CD. तो इससे क्या हुआ, एंगल साइड एंगल से हमने कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर दिया. नाउ फोर्थ, 5th and 6th is your homework. In our next video we will start from the exercise. That's all for today. Thank you, class.